ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਹਾ ਤੇ ਆਏ, ਕਿਨ ਇਹ ਰਾਹ ਚਲਾਈ। ਦਿਲ ਮਹਿ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਵਾਦੇ, ਫਿਸਤ ਦੋਜਕ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਕਾਜੀ ਤੈ ਕਵਨ ਕਤੇਬ ਬਖਾਨੇ, ਪੜਤ ਗੁਨਤ ਐਸੇ ਮਾਰੇ। ਪੜਤ ਗੁਨਤ ਐਸੇ ਸਭ ਮਾਰੇ, ਕਿਨਹੂ ਖਬਰ ਨਾ ਜਾਨੀ। ਰਹਾਉ ਸਕਤ ਸਨੇਹ ਕਰ ਸੁਨਤ ਕਰੀਐ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਦੋਗਾ ਭਾਈ। ਜੋ ਰੇ ਖੁਦਾਏ ਮੋਹ ਤੁਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਨ ਹੀ ਕਟ ਜਾਈ। ਸੁਨਤ ਕੀਏ ਤੁਰਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ, ਔਰਤ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰੀਐ। ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਨਾਰ ਨਾ ਛੋੜੈ, ਤਾਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹੀਐ। ਛਾੜ ਕਤੇਬ ਰਾਮ ਭਜ ਬਉਰੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਕਬੀਰੈ ਪਕਰੀ ਟੇਕ ਰਾਮ ਕੀ, ਤੁਰਕ ਰਹੇ ਪਚਹਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ 477 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ, ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੱਤ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਕੁਝ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਮਰਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮਰਿਆਦਾ ਮਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੋ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੰਢੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ? ਕੰਢੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਚੱਲੇ
कंडे किसी काम दे नहीं। मर्यादा जरूरी है, जीवन रब वाले पासे लाया जाए। जे जीवन रब वाले पासे ना चलिया तो मर्यादा भी किसी काम नहीं। मर्यादा जरूरी है, मैं मर्यादा का खंडन नहीं करता, पर जे मर्यादा नूं तुसीं एक पासे रख के परमात्मा का नाम नहीं जपदे, केवल तो केवल मर्यादा दे धारनी जे, तो गुरु नानक दे घर का सिद्धांत कहंदा तू परमात्मा च अभेदता हासिल नहीं कर सकता। एक दो मैं उदाहरणा दे देना, फिर आप इस शब्द वाले आउने। एक तो गुरु अर्जुन साहब महाराज जी का बचन है, कह लगे तू कभी धर्म के मसले दे विच ना पिया कर। अज तक ये मसला सब तो वड्डा पाया गया जी, तेरा धर्म की है। इत्थे कबीर साहब ने इहो जिक्र करना कि रब ने किहड़ा धर्म बनाया सी। याद रखियो, जो गुरु अर्जुन साहब नूं पुछो ना कि सब तो चंगा किहड़ा धर्म है, तो तुसीं कुरबान जाओ गुरु अर्जुन साहब तो उन्होंने सिख धर्म नहीं जे लिखिया, उन्होंने हिंदू जैनी बोधी इस्लाम धर्म नहीं लिखिया। उन्होंने इक्को गल ते काम निबेड़ दिता, कहन लगे जे तू अपने जीवन दे विच शुभ कर्म करके परमात्मा का नाम जपदा, तेरे वास्ते इहो सब तो चंगा धर्म है। वो असीं अमृत बचन पढ़ते हैं जी, सर्ब धर्म है श्रेष्ठ धर्म। सुखमनी साहब का पावन बचन है। श्रेष्ठ का अर्थ है चंगा, सब तो वधिया। कहते जे तुसीं मैनू पुछदे, गुरु अर्जुन साहब कहते जे मैनू पुछदे ना चंगा धर्म किहड़ा है, कह लगे सर्ब धर्म है श्रेष्ठ धर्म, किहड़ा हर को नाम जप निर्मल कर्म, तू शुभ कर्म करी ते परमात्मा का नाम जपी। हुण इत्थे मसला खड़ा हो गया, नाम किहड़ा जपना है। इनू गुरबाणी फिर खोल दी है। मैं बड़ी बारी क्या, कदी भी तुसी धर्म के मसले दे विच किसी की ऐनक ला के धर्म नूं ना देखो। सानू ऐनकां लगियां होईयां ने, किसी महापुरुष की असीं ऐनक लाई है, किसी ब्रह्म ज्ञानी की लाई है, किसी प्रोफैसर की लाई है, किसी फिरके की लाई हुई है, किसी जथे की लाई हुई है, किसी ने अपनी शरह की लाई हुई है। खुद अपनी निगाह के नाल तुसी बाणी पढ़ोगे तो बाणी दे विचों ही सारे जवाब ने। हुण उस नाम किहड़ा जपना है, गुरु अर्जुन साहब ने कह तो दिता कि हर को नाम जप निर्मल कर्म, तो नाम किहड़ा जपना है। फिर मन च आवेगा अल्लाह जपा, राम जपा, किहड़ा जपा। गुरु अर्जुन साहब फिर निर्णय करते हैं, कह लगे कोई बोले राम राम। ये भी गुरु अर्जुन साहब का बचन, कहते तू राम राम बोल, सानू कोई मुश्किल नहीं। कोई खुदाए, कोई खुदा खुदा कही जावे, भावें कोई सेवा गोसाइयाँ, कोई अल्लाह है, कोई अल्लाह कही जावे, कोई राम कवे, कोई कुछ भी कवे, बस इक्के चीज़ दे गल मुकदी है। कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का, तिन भेद जाता तू राम जप अल्लाह रहीम। जो मर्जी जप, जिन्ना चिर तू परमात्मा के हुक्म नूं नहीं पछाणदा उन्ना चिर तेरे जपे हुए ने फलीभूत नहीं होना। तो जिन्नू भी जपेगा याद रखी, उहदे लई तेरे अंदर प्रेम, उहदे लई शरधा सत्कार पैदा होवे ते तू किसी टिकाने ते लग जाएगा। दूजी उदाहरण देवां, एक असीं सवैया पढ़दे अमृत वेले, गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी का सवैया मैं 2 वारी अर्ज किया, फिर जिक्र कर देना। उहदे विच भी उन्हां लोकां दा जिक्र है जिहड़े केवल ते केवल शरह दे, जिहड़े कायदे कानून दे इन्ने क पाबंद हो गए कि दुनिया तो उन्होंने अपनी एक वक्री होंद बना के रख ली। चाहिदा तो ये सी ना, धर्म तो इसे काम हुंदा कि सारिआं नूं अपने कलावे दे विच लिया जाए। माँ का काम की है, माँ इसे काम नूं है ना भी घर च धी है, पुत्त है, न्याणे आपस च लड़ते हैं, बच्चे लड़के माँ को आउंदे ने, माँ दोवां नूं कलावे दे विच लैके कहंदी पुत्त कोई गल नहीं, लड़ी दा नहीं हुंदा, भैण भरा आपां ही आ, ये अपने भैण भरा ने। धर्म इस करके सी कि तू धर्म दा ते वंडियां ना पा, धर्म तां सी तू धर्म के नाँ ते सारिआं नूं इकट्ठे करके एक परमात्मा की गोद दे विच इकट्ठियां कर दे। असीं धर्म के नाँ ते वंडियां पाउणियां शुरू कर दित्तियां ते धर्म के नाँ तो फिर गांह फिरके चला ले भी ये साडे साधु जी ने, ये महापुरुष ने, ये साडे फलाणे ने, ये कर्म नहीं करते, ये कर्म नहीं करते। मैं बड़ी बारी जिक्र किया है कि जिहड़े फिजिकल वर्क ने, साडे फिजिकल कर्म ने, वो नाल नहीं जाने, नाल साडे कीते होए मन दे राहीं कर्म साडे नाल जाने ने। जे मन च पाप है तो याद रखियो तो साडा तन भी पापी होएगा। जे मन पवित्र है तो तन पाप वाले पासे कदी नहीं तुरदा। असी तन नूं धर्मी बना लिया, मन उत्थे दा उत्थे खलोता रह गया। वो गुरु कलगीधर पातशाह का बचन है, श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरियो कर जोग जती। क्या लगे, जैनी बोधी सरेवड़े जिन्ने भी बोधी भिक्षु ने, श्रावक शुद्ध समूह सिधान के जिन्ने भी सिद्ध ने, देख फिरियो कर जोग जती के। अजोगी जती सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, भाव सारे फिरकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फिर के वेख चुका मैं। श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरियो कर जोग जती के, सूर सुरार्दन शुद्ध सुधातिक संत समूह अनेक मति के। सूर ते सूरमे, सूरमिਆਂ ਨੂੰ मारन वाले दैंत, अमृत पीण वाले पवित्र आत्मावां, इन्हां ਨੂੰ भी सारिਆਂ ਨੂੰ फिर के वेख लिया। कह लगे सारे ही देश को देख रहे हो, मत मत का अर्थ धर्म, सारे देशों के मत मतांतर फिर के वेख ले, को ना देखिए तो
प्राणपति के प्राणा तो पति परमात्मा के नाल किसी का प्यार नहीं पिया। हर कोई अपनी ही धुंतनी वजाई जाता है, हर कोई अपनी ही गल करता है। साडे कोल आओ आ निजम ने, साडे कोल आओ आ निजम ने। गुरु कलगीधर पातशाह जी ने निर्णय किया, कह लगे श्रीपत श्री भगवान की भाए कृपा हो। ते कहते जे तेरे उत्ते परमात्मा की कृपा नहीं ना होंदी, जे तू उहदे चरणों च अभेद नहीं, उहदी रहमत नहीं ना लै सकिया। एक रत्ती बिना एक रत्ती के कह लगे एक दे विच रंगे जान तो बिना एक रत्ती जिन्नी भी मालक के दरबार के उत्ते तेरी कदर नहीं पैनी। तू अपने वालों जिन्नियां मर्जी मर्यादा रखी जा। सो मैं इस विचार वाल अज दी वाल आवां। मेरे कहण दा भाव गुरमुखो इन्ना क है कि धार्मिक निजम धर्म के कानून बहुत जरूरी ने, पर जे तुसी केवल तो केवल निजम ही रख के बह के अंदर जीवन ना होया तो याद रखियो उन्होंने गुरबाणी ने भेख किया है, उन्होंने गुरबाणी ने परवाह नहीं किया। अज पहला तो चलो असी बाकी धर्मां की गल करते, अज साडे धर्म च ये बड़ी तगड़ी मुश्किल बन चुकी है। रौला पाया जाता, दुहाई पै गई, लुटे गए जी बच्चे, पतत पुणे वाला हो गया, ओ हो गया जी हो गया, पता नहीं कितना रौला पाया जाता है। पर एक गल याद रखियो, मैं एको बेनती करदा ना, बीज कदी नाश नहीं हुंदा। जे तुहाडे विच जुरत है तो तुसी बच्चों के अंदर पिया होया सिक्खी का बीज फिर पुंगार सकते। जे असी उस पासे नूं तुरदे नहीं, असी काम ही इहो जिहे करी जाने आ कि धर्म के नाम पर डरा ही इन्ना क दिता, बच्चे साडे मूँह ही नहीं करते। वो आंदे पता नहीं धर्म के बला की, असी जाना क्यों है। चाहिदा सी समझाउणा चंगी तरह बिठा के भी आ धर्म है। धर्म का काम बहुत सौखा सी, असी उन्ना ही ज़्यादा औखा बना के रख दिता। चलो मैं अज दे विचार वाला मैं ये सारियां गल्लां खुल जाणियां ने। हुण इस पावन शब्द दे विच काजी दे नाल भगत कबीर साहब जी का संवाद हो रहा है। काजी कबीर साहब नूं ये गल कहिंदा है कि कबीर देख, तू कदी कदी राम जपदा है, कदी कदी अल्लाह जपदा, तेरा कुछ नहीं पता लगता। तू एक काम कर, अल्लाह अल्लाह जपया कर, चंगा सच्चा मुसलमान हो। सच्चा मुसलमान जिहड़ा है वो भिस्त दे विच जांदा है। ये याद रखियो, भिस्त कहिंदे ने स्वर्ग नूं, दोजक कहिंदे ने नरक नूं। ये मुसलमानां दे विच भिस्त ते दोजक शब्द वरतिया जांदा, हिंदू मत दे विच नरक ते स्वर्ग वरतिया जांदा है। गुरमत दे विच दोवें ही नहीं वरते जांदे। आपां ना नरक नूं मंनदे आ ना स्वर्ग नूं मंनदे आ, साडा हिसाब किताब इन्हां नालों वखरा है। हुण कबीर साहब दे नाल जिस वेले गल होई, कहण लगे कि तू भिस्त दे विच जावेंगा, तो कबीर साहब ने अगों सवाल किए, कह लगे काजी जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ कह रहे जे कि तू सुन्नत करा ला, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कह रहे जे कि शरा दे पाबंद हो जा, कह लगे मैनू ये गल दसो तुसी किहड़े अपने धार्मिक ग्रंथ चों पढ़ के कह रहे जे कि तुहाडा धार्मिक ग्रंथ ये गल कहिंदा कि कल्ले मुसलमान ही रब ने पैदा कीते होए ने, ਜਿਹੜੇ हिंदू ने ਜਿਹੜੇ बाकी लोग ने वो काफर ने, वो किसी काम नहीं आउणगे। कह लगे ये फिर परमात्मा का सिद्धांत ना होया। ये आप पहला पंक्ति पढ़ ली है, काजी तैं कवन कतेब बखानी। ये याद रखियो, 4 कतेब ने, धार्मिक पवित्र पुस्तकां इन्हां दियां 4 ने, ईसाई मत दियां, इस्लाम दियां। कह लगे तो तू मैनू ये दस दे, कबीर साहब कहिंदे काजी नूं भी तू मैनू ये दस दे तेरे किहड़े कतेब दे विच ये गल लिखी हुई है कि जिहड़ा मुसलमान ही रब दी दरगाह च प्रवान हो सकदा, होर कोई प्रवान नहीं हो सकदा। काजी तैं कवन कतेब बखानी, पढ़त गुणत ऐसे सब मारे। कहिंदे गुणत का अर्थ विचार, कहिंदे जिहड़े पढ़ते रह गए ना केवल तो केवल शरा की ऐनक ला के, शरा की ऐनक का भाव मैं हुणे क्लीयर किया भी तुसीं किसी की मर्यादा नूं जदों सिर ते बहा के पढ़ोगे ना तुहाडे कोल पढ़िया नहीं जाना। अज असी बाणी के अर्थ करते हैं, पर बाणी के अर्थ तुसीं 2-4 जी कथावाचक लै लो। एक चलो मैं बेनती करदा, एक मिशनरियां का चुक लो, एक टकसालियां का चुक लो, एक जिहड़ा अखंड कीर्तनी कथा नहीं करते, ये बाकी तुसीं होर साडे जिहड़े फिरके ने ये उन्हां दा 1-2 चुक लो, जिवें तरमाले वाले हो गए। ये इन्हां दे एक शब्द इक्को दे दो इन्हां नूं। कमाल दी गल, इन्हां सारियां दी आपस च विचार नहीं रलनी। हर कोई अपने महापुरखों के नाल, हर कोई अपनी ऐनक ला के संगत नूं अज उलझाउण दी कोशिश कर रहा है। जिन्ना चिर तुसीं खुद नहीं ना बाणी पढ़दे उन्ना चिर तुहानूं इन्हां ने, चलो इन्हां की कहना, मैं ही कहदा असीं लोकां ने तुहानूं बन्ने नहीं लगन देना। उहदा कारण है साडी रोटी इसे गल तो चलदी है। खुद बाणी पढ़ो। कबीर साहब कहिंदे पढ़त गुणत ऐसे सब मारे। कहिंदे जिहड़े तेरे वर्गे विचारदे रह गए ना, जिहड़े शरा की गल करते रह गए, पढ़त जिहड़े पढ़ते रह गए, गुणत जिहड़े उहनूं विचारते रह गए, वो इसे चीज़ दे विच ही मर गए कि मैं शरा के मुताबक होना है, शरा के मुताबक होना है। जीवन दे विच कमा ना कुछ भी सके, किन्हूं खबर ना जानी, उन्होंने इस गल की खबर ना पई कि परमात्मा नूं चंगा की लगता है तो परमात्मा नूं माड़ा की लगता है। अज तक असी इहो चीज़ां सोची जाने, शायद परमात्मा नूं आ चंगा लगता है तो शायद परमात्मा नूं आ चंगा लगता है। मैं इत्थे एक गल कह देवां,
अज मैनू एक फोन आया तो वो सिंह कहन लगा बाबा जी मैं भाई नंद लाल दे ना उन्होंने कुछ रहतनामे मैनू भेजे, कहता तुसीं जी ये स्टडी करके ना मैनू थोड़ा जिहा कमेंट करियो। मैं चलो पढ़े, वो फोन आ गया, मैनू कहन लगा बाबा जी देखो जिहड़े लोग ने किन्ना पतत पुणे वाल जा रहे हैं, कौम जिहड़ी वो किन्नी गलत रस्ते ते जा रही है। मैं उन्होंने कहा भी तू कित्थों हो गया डिसाइड करने वाला। एक गल ध्यान नाल जरा ध्यान नाल सोचो, हो सकता मेरी गल कईयां नूं पचे ना। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का सिद्धांत की सानू कहंदा है। मैं उन्होंने ये जवाब दिता, मैं क्या भी कोई सही है जां गलत है असी जज नहीं कर सकते। साढ़े कोल कोई लास्ट स्टेटमेंट नहीं कि तेरे को आ रूल ने तू पास हो जाएगा तो आ रूल ने तू फेल हो जाएगा। ये मैं उत्थे एक उदाहरण दी, वो बंदा मैस च लगा होया है चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी में, उन्हें मैं उदाहरण दी, मैं तुहाडी मैस दे विच मान लो कोई भोजन पकदा है, एक चलो आ बीबियां बैठियां तुसीं खाना पकाउंदे जे, चार गैसट आ जाते हैं घर च, 3 तां जाने वो रोटी खांदे ने। एक बंदा कहंदा कि लूण बहुत ज़्यादा पा दिता, दूजा कहंदा लूण बहुत घट पा दिता, तीजा कहंदा नहीं नॉर्मल है, ना ज़्यादा है तो ना घट है। तुसीं दसो तुसीं किहदी गलती कड्डोगे, की जिस च ज़्यादा है वो सही है, घट वाला सही है कि बराबर वाला सही है। मैं उन्होंने यो सवाल किया, मैंने कहता नहीं जी सारे सही ने। मैं क्यों कहता जुबान का टेस्ट है, मैं बस धर्म भी इस चीज़ का टेस्ट है। जिन्हें जिन्नी रब की गल नूं समझ लिया ना वो ओना ही रब के घर च चला गया। मसला इस गल का असी अपनी सोचते बैठे हुए हैं कि जिहड़ा मेरे मुताबिक चलेगा वो धर्मी है, धर्मी वो है जिहड़ा गुरु की मत के मुताबिक चलता है। अमृत बाणी ने जिहड़ा फैसला दिता ना गुरसिख मीत चलो गुर चाली, उत्थे नहीं क्या तू आ चाल ते चल, उत्थे क्या तू गुर चाली चली। तो गुर चाली का अर्थ केवल तो केवल गुरु ग्रंथ साहिब ना करियो। गुर चाली का अर्थ है जे तू मुसलमान है, जो तेनू मुसलमान की शरह कहती है वो मुताबिक चली, जे तू हिंदू है जो तेनू तेरा धर्म कहता वो मुताबिक चली, जो तेरा गुरु कहता वो मुताबिक चली, तेरा पार उतारा हो जाएगा। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, जो तेरा गुरु कहता ना तू उन्नू कमा। तो मैं जी बेनती कर रहा सा, असी अज तक इस मसले दे विच गुरमुखों पे रहे, आ चीज़ चंगी है तो आ माड़ी है। मैं उन्होंने एको गल कही, मैं एक जपजी साहिब के 2 बचन ने, एक तो असी पौड़ी च एक पंक्ति पढ़ते हैं कि हुक्मी उत्तम नीच, ਇਹਦਾ भाव परमात्मा के हुक्म दे विच चंगे ने तो ਉਹਦੇ हुक्म दे विच ही माड़े ने। उस तो बाद 2 पौड़ियाँ सतगुਰਾਂ ने बगैता दित्तियां, एक असंख जप वाली एक असंख मूर्ख वाली। मेरे को समा नहीं मैं इन्हां दा जिक्र कर सकां, पर दोनों दे विच वेखो एक च पूरे धर्मी ने एक च पूरे अधर्मी ने, एक पापी ने एक पुन्नी ने। दोवां दी समाप्ति इक्के गल ते हुंदी है कि जो तुद भावै साई भली कर तू सदा सलामत निरंकार। जे गुरु नानक साहब कह रहे ने तू चंगे पैदा कीते तू मंदे पैदा कीते, मैं दखल अंदाजी नहीं कर सकता। जे साडा गुरु दखल अंदाजी नहीं करता तो साडे कोल की हिम्मत है कि असीं परमात्मा के सिद्धांत दखल अंदाजी करिए। इस करके गुरबाणी ये नहीं कहती तू दूजे नूं सवार, बाणी कहती आप सवारै मैं मिलिया सुख होए फरीदा, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा। असी कहने तू बदल, बाणी कहती है मैं बदल। फिर इनू समझियो, मैं स्टेज पर बैठा, मेरे सामने जिन्नी भी संगत, मैं आखा जी तुसी बदलो, पर गुरु ग्रंथ साहब मैनू कहणगे भलिया तू संगत नूं बाद बदली, पहला आप अपने आप नूं बदल। जिस दिन तू अपने आप नूं बदलिया संसार ने अपने आप ही बदल जाना है। असी जिन्नी भी साडी सोच है ना सारियां दी इहो ही है कि तू बदल जिहदे करके बखेड़े ने। जिस दिन तुसी अपने आप नूं बदल लेना भी मैं बदल, उस दिन झगड़ा ही मुक जाना है। क्योंकि तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा परका मिट गया जत देखो तत तू। आ मैं वेरी वाली बीमारी विचों मुक जानी। हुण इत्थे धर्म का ये जिहड़ा पवाड़ा ये पै रहा है, वो कहंदा काजी कहंदा मेरा धर्म चंगा, तू बाकी धर्म हिंदू मत नूं ना अपना। तो कबीर साहब इस गल का निर्णय देंदे ने, कहंदे जिहड़े तेरे वर्गे पढ़त गुणत ऐसे सब मारे, जिहड़े तेरे वर्गे पढ़ते रह गए विचारते रह गए वो इस चीज़ दे विच खचत रह गए। चंगा की मंदा की किन्हू खबर ना जानी, उन्होंने समझ ही ना लग सकी कि साडे वास्ते सही की सी ते साडे वास्ते मादा की सी। साडे ते इन्ना क ज़्यादा सानू फसा दिता गया ना, सानू अजे तक ये नहीं पता लगा कि खाना की है तो छड्डना की है। अज भी साडे उही सवाल ने, बाबा जी आंडा खा लीए कि छड्ड दईए। अज भी साडे ओह सवाल ने जी अमृत वेले उठ के नाम जप लीए कि दिने चढ़े बाणी पढ़ लीए। मुद्दतां हो गई, साडे सवाल ओह दे ओह रहे ने, जपोगे किहड़े वेले। अज भी सानू संगत मिलती, सवाल उहिओ खड़े होए ने। मैंने पिछले समय च ना एक माता जी मेरे बजुर्ग सन काफ़ी, ये तकरीबन मैं एस्टीमेट लावां तो 70-80 साल की उन्होंने उम्र है।
उन्होंने मैंने महीना पहला सवाल किया, फिर रिपीट किया, कह लगे बाबा जी तुहानू सवाल किया, मैं जी दसो, कहते मांस खा लीए कि छड्ड दईए। मैं जी खा लो। वो मैं जब भी मुकाया, जे मैं कहता ना खा लो, वह विचारी का जी करता, उन्हें जो 2-4 साल जीने ने इसे चीज़ जी जाना सी, पाप करना। मैं बीबा तू खा के नाम जप ली, आपे हिसाब किताब हो, सारी उम्र तू खाती रही, हुण मैनूं पुछदी है खा ला के छड्डदा। सो ये अजे तक असी मैं बड़ा हैरान होया भी चलो मैं कई बार पेंडू शब्द वरतदा, बंदे दी मड़ियां च लत्तां ने, वो अजे भी इसे चीज़ फसिया होया कि पाप के पुण्य, तू बीबा अजे हुण भी रब वाले पासे तुर पा, छड्ड दे इन्हां चीज़ां नूं। मैं कहा मैं जी तुहाडा शरीर हजम कर जाएगा, तुरिया तुहाडे कोल सीधा जांदे नहीं, मांस कित्थों पचा जाओगे। मेरी उम्र का कवे तो गल मान सकते हैं। मैं ये हक च नहीं कि खाना कि नहीं खाना, एक वखरा सबजैक्ट है। मैं सिर्फ तुहानूं ये समझा रहा, साडे उहिओ सवाल रहे ने, सवाल ही बदले। अज भी असीं पुछदे बाबा जी किन्ने बजे उठिया करिए, अज पुछ के जाने, हफ्ते बाद फिर उहिओ सवाल है। मैं कहना 2 बजे, फिर बंदा सोचता रहिंदा किसी होर नूं पुछ ला जिहड़ा 4 बजे कह दे। 4 बजे तो 6 बजे तो आउंदे आ, ना तो असीं उठदे आ ना असीं तुरदे हैं। याद रखियो ये चलो गल्लां हासे वालियां ने, पर सच्चाई ये असीं उत्थे दे उत्थे खलोते हैं। एक उदाहरण दे के मैं विषय वाला, तुहाडा बच्चा स्कूले पढ़न पाउणा है, बड़े समस्या ना अजकल की चलदा है, पंजाब बोर्ड चलदा है, CBSE चलदा है, ICSE बोर्ड चलदा है। बंदा पुछदा रहिंदा मैं बच्चे नूं किहड़ी फील्ड च पावां, पुछण लग्या तुसीं 10 दिन लाउंदे जे, ते जदों एडमिशन का समा आउंदा एडमिशन हो जाती है, जे समा निकल जे बच्चे का साल बर्बाद हो जाता जे, हुंदा है ना, जे एडमिशन का समा निकल गया साल बर्बाद हो गया, जे तुसीं पुछदे गल कढ़ दी तुहाडी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये गल याद रखियो, ये डिसीजन तुहानूं हुणे ही लेना पैना है कि मैं नाम जप्पां कि ना जप्पां। जे नहीं जपना तो छड्डो, गुरद्वारियां नूं जाके मौजां करो, तो जपना सारा कुछ छड्ड के नाम जपो, एक पासे हो जाओ। एक पासे हो जाओगे तो किसी पासे लगोगे, जे एक पासे ना होए तो इन्ना ही आपां झमेलियां दे विच फसे रहना है। कबीर साहब कहंदे, कहण लगे किन्हू खबर ना जानी, कहंदे तेरे वर्गिਆਂ नूं ये गल दा पता ही नहीं लग सका सही की है ते गलत की है, तू सारी उम्र इसे बैसम बैसे दे विच ही पिया रहा। सो ये पावन शब्द का अंतरी भाव है। आपां विचार वाल आइए। आरंभ च बख्शिश करते हैं, आसा आसा राग है जी। हिंदू तुरक कहाँ ते आए, किन यह राह चलाई। कह लगे हिंदू तो तुरक, तुरक कहते हैं मुसलमानों नूं। कबीर साहब कह लगे कि काजी जी मैनूं ये दसो कि हिंदू तो तुरक इन्हां दा जन्म किसी वक्रे वक्रे तरीके दे नाल है। जन्म साडा सारिआं दा इक्को जिहा है ना, भी जिद्दां सिख, चलो सिख का तो जिक्र इन्हां मैं वैसे नाल ला दिता, जिवें सिख का जन्म है उस तरह हिंदू का है, जैनी बौद्धी सारिआं दा जन्म इक्को तरीके दे नाल हो रहा है। जो कुदरत का निजम है ना, चार खानियां ने अंडज जेरज सेहत उत्पज, जन्म उस तरीके नाल है। हिंदू तुरक कहाँ ते आए, कहते कित्थों आए, रब तो सारे तो असीं इहो कहने ना भी रब ने दात दी है। मुसलमान होएगा कहेगा अल्लाह ने दी है, हिंदू होएगा कहेगा राम ने दी है, सिख होएगा कहेगा गुरु नानक ने दी है, पर है तो परमात्मा की दात ही ना। कह लगे हिंदू तुरक कहाँ ते आए, ये सवाल है। मैनू दस का जी ये हिंदू तो तुरक जिन्हां च तू फर्क कढ़दा, ये कोई वक्रे वक्रे ने। शैतान ने हिंदुआं नूं भेजिया ते मुसलमानां नूं जिहड़ा रब ने भेजिया, ये कित्थों दा इंसाफ है। हिंदू तुरक कहाँ ते आए, किन यह राह चलाई। राह का अर्थ है धर्म के रस्ते। तो जे रब ने इक्के थां तो सारे भेजे ने, फिर धर्म के रस्ते किन्ने चला दिते। ये बड़ा डूंघियाई वाले विषय ने, अपने को समा उन्ना को हुंदा। ये धर्म के विषय जिहड़े ने ना, ये इत्थे कबीर साहब कह लगे किन यह राह चलाई। ये धर्म दीआं वंडियां किन्ने पा दित्तियां। तुसीं कुरबान जाओ गुरु नानक साहब तो, गुरु नानक साहब जिथे भी गए ना, उन्होंने हर थां दे उत्ते हरेक वक्खो वक्खरे नाम दे नाल वक्री वक्री भाषा च बुलाया गया, क्योंकि गुरु नानक साहब सिख नहीं सन। ये गल कौड़ी लगेगी तुहानूं। गुरु नानक साहब मक्के च भी जाते हैं, गुरु नानक साहब जगन्नाथपुरी के मंदिर दे विच भी जाते हैं, वो जोगियां दे कोल सुमेर पर्बत ते भी जाते हैं, करतारपुर की धरती धर्मशाला भी कायम करते हैं। तो जे साडे वर्गे होंदे ते असीं कदी भी गुरु नानक साहब नूं परवाह ना करदे, ये जे मक्के हो गए आ गए, ये मंदिर च वड़ गए। याद रखियो बाबा नानक सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। गुरु नानक साहब नूं घर घर बाबा गा भी है, भाई गुरदास जी लिखते हैं ਜਾਂ लिखते हैं जाहर पीर जगत गुर बाबा। गुरु नानक साहब नूं हिंदू जिहड़े ने वो गुरु कहंदे सन, मुसलमान पीर कहंदे सन, क्योंकि गुरु नानक साहब रब के घर का सुनेहा लैके आए। असीं गुरु नानक साहब के नां ते ही धंधा शुरू कर दिता कि ये सिख धर्म है जी, इनू इन्ना क ज़्यादा बन के रख दिता, दूजिਆਂ नूं मनना शुरू खत्म कर दिता। पर यह सच्चाई है, रूहानीयत का ज्ञान सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ। जे सूरज निकलता है, धुप सारिਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ है, पानी जमीन सानू देंदी है, पानी सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ है। याद रखियो रब का उपदेश भी सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ है।
सो मैं ज़्यादा ना इस विचार वाल आवां। कह लगे किन ये राह चलाई, कहते ये किन्ने ये झमेले खड़े कर दिते, किन्ने ये धर्म के राह गांह चला दिते। अगे कह लगे दिल मह सोच विचार कवादे, कवादे का अर्थ है झड़गालू मनुख। कहते ईरखा दे विच भरे होए हे ईरखालू हे झड़गालू मनुख, ये गल सोच कि भिस्त दोजक किन पाई। जे तू कहना कि कोई मुसलमान जिहड़ा वो भिस्त दे विच जावेगा तो जिहड़ा हिंदू हो जाएगा वो दोजक च जावेगा, कि रब फड़ के इन्हों भिस्त ते दोजक दे विच सुट्टदा, फिर ये वो तो रब ना होया। मैं पिछले समय दे विच कहा सी जिहड़ा रब किसी नूं नरक ते स्वर्ग दे विच सुट्टदा है उन्होंने रब नहीं कह सकते, वो ईरखाबाज या एक पक्षपाती इंसान हो सकता है। कभी माँ बच्चों 'च फर्क करती है, कभी बाप बच्चों 'च फर्क करता। जे माँ बाप नहीं फर्क करते तो रब कित्थों फर्क करेगा। असी माँ नूं रब दे नां ते पूजते हैं ना कि माँ रब का नाम है, बड़े स्टेटस पाए जाते हैं। तो जे भले वो माँ नहीं फर्क करती फिर रब कित्थों फर्क करगे। ये सानूं समझण दी लोड़ है। ये लड़ाया जाता है धर्म के नाँ के उत्ते। अज सब तो वध मैं रोज़ ही कहना तकरीबन सब तो वध धर्म के नाँ ते सानूं लुट्टिया जाता है। कबीर साहब कहन लगे कहंदे कि भलिया मैनूं ये दस कि भिस्त दोजक किन पाई, किन्ने फड़ के हिरे इन्हां नूं जिहड़ा तुरकां नूं जिहड़ा मुसलमानां नूं भिस्त दे विच ते हिंदुआं नूं जिहड़ा दोजक दे विच पा दिता। काजी तै कवन कतेब बखानी, हे काजी मैनूं दस तेरे किहड़े कतेब दे विच ये गल्लां लिखियां होईयां ने कि मुसलमान ही। इत्थे फिर समझण वाली गल है, मुसलमान जिहड़े ने वो हिंदुआं नूं काफर कहिंदे ने। वो ये गल कहिंदे ने, कहिंदे कि जिहड़ा हिंदू है वो रब दे घर च प्रवान नहीं हो सकता। हिंदू कहिंदे ने मुसलमान प्रवान नहीं हो सकता। ये मसले चलते हैं। फिर कबीर साहब कह लगे काजी ते कवन कतेब बखानी, मैनूं दस दे किहड़े कतेब च लिखिया है कि मुसलमान ही जिहड़ा सच्चा हो सकता है, मुसलमान ही रब च अभेद है, दूजा नहीं अभेद हो सकता। काजी ते कवन कतेब बखानी पढ़त गुणत ऐसे सब मारे। कहते तेरे वर्गे जिहड़े पढ़ते रहे जिहड़े विचारते रहे वो इसे चीज़ दे विच पै के मर गए। किन्हू खबर ना जानी, किसी ने असलीयत नूं किसी ने असली खबर नूं जानन दी कोशिश ना कीती। रहाओ अगे कह लगे सकत स्नेह कर सुन्नत करिए मैं ना बदोगा भाई। इनू थोड़ा जिहा ध्यान ना सुनियो। मुसलमाना की शरह के मुताबक एक रस्म अदा की जाती है जो मुंडे ने या मेल नूं कह दईए छोटी उम्र दे विच बच्चे की सुन्नत कर दी जाती है। इनू थोड़ा जिहा ध्यान ना समझ लियो, मैं समझा देना। ये जिहड़ी साडी इंदरी है ना बाथरूम वाली, वो अगले पासों बच्चे का मांस कट दिता जाता तो कह दिता जाता सुन्नत हो गई। ये असल दे विच हजरत इब्राहिम तो चली है। ये हुण इन्हां दा इतिहास ही इदां दा सानूं सुणाउण लग्गिआ भी थोड़ा जिहा झिझकना पैंदा है। इब्राहिम ने अपनी पहली पत्नी दे नाल ये वादा कीता सी, ये उन्हां दा इतिहास है। सुन्नत कित्थों चली मैं ये जिक्र कर रहा। इब्राहिम ने अपनी पहली पत्नी नाल वादा कीता सी कि तेरे तो बिना किसी होर औरत दे मैं कोल जावांगा, जे उन्होंने स्पर्श करांगा जिहड़ा जिहड़ा अंग मेरा स्पर्श होएगा उन्होंने तू कट देवीं। चलो कुदरती कोई भाना वापरिया, पहली पत्नी बीमार हो गई, कुछ होया, उन्हें दूसरा विआह करा लिया। दूसरी पत्नी का जो संग किया पहली दे कोल फिर वापस आ गया। इन्हां दा इदां दा काम, एक नूं छड्डता एक नूं फड़ लिया एक नूं छड्डता, ये इदां दे काम करते रहे। वो जो पहली दे कोल आया पहली नाराज़ हो गई भी तू तो हुण दूसरी कोल रहा, उन्हें फिर इहदी सुन्नत कीती सी। उस तो सुन्नत चली हुई है। उस तो हजरत इब्राहिम नूं जिहड़ा है हजरत मुहम्मद साहब फॉलो करते हैं, उन्होंने मानते हैं। हजरत मुहम्मद साहब नूं अज दे मुसलमान फॉलो करते हैं, उन्होंने मानते हैं। उन्होंने मुताबक ये सीना बसीना गल्ली बाती सुन्नत चली आ रही है। लिखती इहदा कुछ नहीं जे हैगा, ये रिटन च नहीं इहदा हैगा भी किताबां विच लिखिया होवे तुसीं सुन्नत करो तो मुसलमान हो गए। ये तो चली हुई है। मैं जिहड़ी आरंभ च गल कही सी ना, कुछ मर्यादा साडियां धर्म के मुताबक बनाई ने, कुछ परसनल चीज़ां होंदियां ने उन्होंने धर्म समझ के गांह जिवें तोड़ दिता जाता है। समा सीमत मैं एक उदाहरण दे देना छोटी जी। एक बेचारा बजुर्ग घर च रहिंदा सी, उन्हें रोटी खानी तो बजुर्ग दीयां दाढ़ां दूढ़ां ते खाधियां होंदियां। उन्हें अपनी नौं नूं कहना धीए इदां करया कर, एक ना तीला रख दिया कर रोटी का। अजकल तो तुथ पिक आ गए ना, उदों तीला हुंदा सी बौकर दा, तोड़ के रख देना, मैं दंदा च मार लिया करांगा। उन्हें नौं ने विचारी ने रख देना। नौं वो जो बजुर्ग होया तो वह नौं नूं समझ ना लगनी भी पापा जी तीला क्यों रखते होंदे सन। वो इन्हां दे उहदे कमली के दिमाग च पिया ना भी उहदी दंदा च रोटी फस जाती सी, मारना हुंदा सी। जो पापा जी चढ़ाई की उन्हें पंडित नूं थाली वर्जी, उन्हें थाली दे विच भी तीला रखता। पंडित जाने बुला कहंदा तीला काहदे, कहंदी मेरे पापा जी रखते सन। उन्होंने पापा जी करदे करदे फिर जो श्राद्ध कराने पापे की थाली दे विच तीला रख देना।
ਉਹ ਤੀਲਾ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੀਲਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਤੀਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ? ਗੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਤੀਲਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੰਦ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਤੀ। ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੁਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਨਤ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਕਤ। ਸਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਔਰਤ। ਸਨੇਹ, ਸਨੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਸਕਤ ਸਨੇਹ ਕਰ ਸੁਨਤ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਸੁਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੁਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਕਤ ਸਨੇਹ ਸੁਨਤ ਕਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਬਦਲੂੰਗਾ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਨਾਨੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹੋ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਕਤ ਸਨੇਹ ਕਰ ਸੁਨਤ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਦਲੂੰਗਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸੁਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੌਰੇ ਖੁਦਾਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਨਤ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੌਰੇ ਖੁਦਾਏ ਮੋਹਿ ਤੁਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਨਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੰਦਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅੰਗ ਪੂਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਦਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਕਿ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੁੰ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਹੁੰ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋ। ਕੱਚੇ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇਲ ਕੱਟਰ ਲਾਓ, ਹਾਂ ਵੇਖਿਓ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ। ਕੱਚਾ ਨਹੁੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਨਹੁੰ ਉਹ ਕੱਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਸੁਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਦਰੀ ਫੜ ਕੇ ਕੱਟ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਟੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੌਰੇ ਖੁਦਾਏ ਮੋਹਿ ਤੁਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਈ। ਇਹ ਇੰਦਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਨਤ ਕੀਏ ਤੁਰਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਤ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤੁਰਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਲੌਜਿਕ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੀ ਤੇ ਸੁਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਨਤ ਕਰਤੀ, ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸੁਨਤ ਕੀਏ ਤੁਰਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸੁਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਪੁਆੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਕਿਆ, ਔਰਤ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਨਾਰ ਨਾ ਛੋੜੈ। ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਪਤਨੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਦਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਜਨਾਨੀ ਦਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਹਰੇਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਨਿਕਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਨਾਰ ਨਾ ਛੋੜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਧ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਨਾਰ ਨਾ ਛੋੜੈ ਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਭਲਿਆ ਜਨਾਨੀ ਤੇਰੀ ਹਿੰਦੂ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੁਨਤ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹਿ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸੁਨਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹੋ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਛਾੜ ਕਤੇਬ ਰਾਮ ਭਜ ਬੌਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਤੇਬਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਤੇਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਛਾੜ ਕਤੇਬ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਛਾੜ ਕਤੇਬ ਰਾਮ ਭਜਰੇ ਬੌਰੇ, ਬੌਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੱਲੇ ਨੂੰ, ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਨਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛਾੜ ਕਤੇਬ ਰਾਮ ਭਜ ਬੌਰੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਕਬੀਰੈ ਪਕਰੀ ਟੇਕ ਰਾਮ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਸਰਾ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਏ। ਤੁਰਕ ਰਹੇ ਪਚਹਾਰੀ, ਪਚਹਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਖੁਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਰਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਸੁਨਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਮਾੜਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਝਗੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਹੈ ਪਕਰੀ ਟੇਕ ਰਾਮ ਕੀ, ਤੁਰਕ ਰਹੇ ਪਚਹਾਰੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਉਹ ਬੈਸਮ ਬੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਸੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਸਮੁੱਚਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸੁਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਸੁਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੋਮ ਵਰਗਾ ਦਿਲ, ਬੜਾ ਕੋਮਲਤਾਈ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਨਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੈਸਮ ਬੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਸਾਡਾ ਫਿਰਕਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਧਮਕਾਣਾ ਫਿਰਕਾ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਆਓ ਮਾੜਾ ਆਓ ਚੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਸਮ ਬੈਸਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਛਾੜ ਕਤੇਬ ਰਾਮ ਭਜ ਬੌਰੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਕਬੀਰੈ ਪਕਰੀ ਟੇਕ ਰਾਮ ਕੀ, ਤੁਰਕ ਰਹੇ ਪਚਹਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ